हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक मॉक टेस्ट दूंगी। इस मॉक टेस्ट को आप सॉल्व करके देखो। दिस मॉक टेस्ट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, वेदर इट्स क्लैट, DU-LLB, MSCET। सो ऑल दो स्टूडेंट्स ट्राई सॉल्व दिस मॉक टेस्ट और अपनी परफॉर्मेंस चेक करो कि आपने कितनी आपकी प्रिपरेशन है। इट विल हेल्प यू इन बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से। इट्स अ वेरी स्मॉल मॉक टेस्ट। सो गाइज, बिफोर वी स्टार्ट विद द टेस्ट, अपनी पेन और कॉपी आप ले लो और अपने आंसर्स राइट डाउन करना। देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लास्ट तक इस वीडियो को देखना। आपको इसके आंसर्स और जो भी एक्सप्लेनेशन है मैं एंड में दूंगी। सो सॉल्व दिस मॉक टेस्ट। पहले खुद इसको सॉल्व करो, देन सी द आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग दैट। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is, insanity produced by drunkenness is a. Our options are good defense to the crime charged, weak defense to a crime charged. C option is way to reduce the gravity of crime. D option is way to increase the gravity of crime. So this is your first question. Pause the video, solve this question. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, अपना आंसर राइट डाउन करो आप गाइज. Let's see our next question. Our next question is, legal insanity under the Indian law means. Our options are impairment of will faculty. Next option is impairment of emotional faculty. C option is impairment of cognitive faculty. D option is none of the above. So this is our second question. I hope आपको ये questions आते हैं. अगर नहीं भी आते हैं then also try to solve them. Our next question is, the case of Queen versus Dudley and Stephen is known for its use as criminal defense of. Our options are necessity, self-defense, good faith, mistake of fact. This case is a landmark judgment and it's very important case. Let's move on to our next question. Guys, pause the video and solve this MCQ. Let's see our next question. Next question is, an act which would otherwise be crime may in some cases be excused if the person accused of it shows that all except. Our options are, it was done only in order to avoid consequences. B option is, nothing was done then was reasonably necessary. C option is, the evil inflicted was not disproportionate to the evil avoided. D option is none of the above. इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो गाइस. Pause the video, solve these MCQs, try to solve them. Let's see our next question. Our next question is, a person who is not qualified as a medical practitioner performed an operation with the consent of patient. The patient died. Which one of the following grounds will be most appropriate to determine his liability? Our options are, voluntary non-fit injuria is a complete defense. B option is, he has no intention to kill and has performed operation in good faith. C option is, he has earlier done some similar operations with the success. Our last option is, as he is not a medical practitioner and is unskilled, the plea of consent and good faith will not be available. So this mock test is based on Indian Penal Code subject criminal law. इस क्वेश्चन को गाइस रीड द, जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ो, देन ऑप्शंस, पहले तो क्वेश्चन को ही समझो, फिर ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए उसको आंसर देने की कोशिश करो. अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे देन यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर इट. ओके, आई होप आपने जो भी ये 5 क्वेश्चंस थे, इट्स अ वेरी स्मॉल मॉक टेस्ट. आप ये 5 क्वेश्चंस थे, आई होप आप सबने देख लिए. अगर आपको टाइम लग रहा है, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व देम. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर्स. हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. ठीक है, इंसैनिटी प्रोड्यूस्ड बाय ड्रंकनेस इज अ. इसका आंसर क्या है गाइज? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज
बी ऑप्शन, दैट इज वीक डिफेंस टू अ क्राइम चार्ज्ड। वाई वीक डिफेंस क्यों है? ठीक है, अगर इंसैनिटी है, ठीक है, वो तब भी ड्रंकनेस से अगर इंसैनिटी हुई है वो तब भी डिफेंस में हो सकती है अगर जो उसने ड्रिंक की थी, जो इंटॉक्सिकेशन की थी, वो इनवॉलंटरी थी, अपनी मर्जी से उसने नहीं की थी। ठीक है, एंड इट वॉज सो हाई इन नेचर दैट मेंटल फैकल्टीज़, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा वो होनी चाहिए, इंटॉक्सिकेशन इनवॉलंटरी होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज़ कि वो इतनी ज़्यादा हाई होनी चाहिए कि जो उसकी मेंटल फैकल्टीज़ ऑफ द पर्सन मस्ट बी स्टॉप्ड वर्किंग, दैट इट बिकम्स, इसलिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रूव करना। सो इसमें क्या है, इंसैनिटी प्रोड्यूस्ड बाय ड्रंकनेस इज़ अ वीक डिफेंस टू अ क्राइम चार्ज्ड। अगर लेना भी है डिफेंस तो वो इनवॉलंटरी होना चाहिए और वो इतना हाई होना चाहिए कि वो उसकी सुदबुद, जो उसकी सोचने की मेंटल फैकल्टीज़ हैं, वो बिल्कुल भी काम ना करें। लेट्स सी आर नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर हम देखते हैं। लीगल इंसैनिटी अंडर द इंडियन लॉ मीन्स व्हाट? So the answer to this question is C option, that is impairment of cognitive faculty। जिनका आंसर सही है वेरी गुड फॉर देम, एंड जिनका नहीं भी सही है फिर भी आप इसको देख सकते हो। अभी आपके एग्जाम में टाइम है, क्योंकि वायरस करके, ठीक है, एग्जाम्स वैसे भी पोस्टपोन हो गए हैं, तो आप प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेटर है। सो वाई, इसका सी आंसर क्यों है? क्योंकि द इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी ऑफ सच ए हाई डिग्री दैट अ पर्सन बिकम्स totally incapable of knowing the nature of the act, or that he is doing is either wrong or contrary to law, that is he totally loses his cognitive faculties to decide what is right or wrong। ठीक है, लीगल इंसैनिटी का मतलब होता है इंडियन लॉ में कि उसके पास, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा, जो उसको इंटॉक्सिकेशन थी इतनी ज़्यादा हाई डिग्री की थी कि उसको नहीं पता था, ही बिकम्स टोटली इनकेपेबल, उसको नहीं पता था कि नेचर क्या है एक्ट की, और जो वो कर रहा है वो रॉन्ग है, एंड दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ। सो सी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आएगा गाइज? क्वीन वर्सेस डडले एंड स्टीफन इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट, और ये जो केस है दिस वाज बेस्ड, ठीक है, इट इज़ यूज्ड एज ए क्रिमिनल डिफेंस ऑफ नेसेसिटी पे ये केस बेस्ड है। ए इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसमें कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था कि जो सेल्फ प्रिजर्वेशन है, मतलब खुद को बचाने के लिए, इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। आप खुद को बचाने के लिए आप किसी और की लाइफ नहीं ले सकते हो। ठीक है, सो व्हाट क्या हेल्ड किया था इसमें कोर्ट ने, that self preservation is not an absolute necessity, taking others life in order to preserve his own is not a right given to anyone, and homicide cannot be justified by any necessity। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे खुद की जान बचाने के लिए आप किसी और की जान नहीं ले सकते हो। सो इट वॉज हेल्ड इन दिस केस, ठीक है, फॉर नो ये केस किस चीज़ के लिए नोन है? इट इज़ नोन फॉर इट्स यूज एज ए क्रिमिनल डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। ए इज़ द आंसर। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या आएगा गाइस? क्वेश्चन क्या था हमारा? एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी क्राइम मे इन सम केसेस बी एक्सक्यूज्ड इफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ इट शोज ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, अगर कोई पर्सन है, ठीक है, अगर कोई एक्ट हुआ है वो अदरवाइज तो क्राइम है, बट कुछ केसेस में उसको एक्सक्यूज़ किया जा सकता है अगर जो पर्सन जिसके एक्यूजिशन लगा है वो अगर शो करे। हमारे ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। सो इसका आंसर क्या आएगा गाइस? इफ द a person accused of it shows that all except nothing was done than was reasonably necessary। सो कब एक्सक्यूज़ किया जाएगा? ठीक है, उसको तभी एक्सक्यूज़ किया जाएगा अगर पर्सन जो एक्यूज्ड है वो ये शो कर दे कि इट वाज डन ओनली इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, वो इसलिए किया गया था ताकि वो कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड कर ले। ठीक है, विच कुड अदरवाइज बी अवॉइडेड एंड विच इफ़ they had followed would have inflicted upon him। अगर वो नहीं करता तो वो मेजर इंजरी होती। सो बी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
लेट्स सी द आंसर ऑफ आवर लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, कि कोई पर्सन है वो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर वो क्वालिफाइड नहीं है, वो ऑपरेशन कर देता है विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन हिज लाइबिलिटी। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन गाइज? डी इज द आंसर। क्यों? क्योंकि एज ही इज़ नॉट ए मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड इज़ अनस्किल्ड, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर तो था ही नहीं, ठीक है, उसके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, एंड ही वॉज अनस्किल्ड, द प्ली ऑफ कंसेंट एंड गुड फेथ विल नॉट बी अवेलेबल। सो डी इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो अनस्किल्ड पर्सन है, ही कैन नॉट प्लीड गुड फेथ व्हेन ही नोइंगली, क्यों? क्योंकि उसने ये जानते हुए भी वो टास्क किया, ठीक है, विच कुड बी, वो किसी दूसरे के लिए हार्मफुल हो सकता था, विच कुड बी detrimental to others. So these are our answers. प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कितने क्वेश्चंस आते थे और कितने नहीं आते थे, ठीक है। अगर आप जितना डिफ़िकल्ट आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना ही आपको एग्ज़ाम में, अगर ईजी क्वेश्चंस आते हैं आपको आते हैं, तो दैट वुड रियली हेल्प यू गाइज। जितना हो सके आप अपना प्रैक्टिस करो बार बार। लीगल रीजनिंग अगर आप स्कोर अच्छा करते हो, आपको एग्ज़ाम में स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल and like and share the videos guys. Bye bye, stay tuned.